پھر زاہد کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ بندے جیسا بندہ ہوتا ہے اور شاید مجھے کوئی غلط فہمی اور ہی ہے، اس لیے وہ اپنے خیال کو نظر انداز کرتا ہوا ان دونوں کو ساتھ لے کر باہر کھڑی پولیس وین کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر جب زاہد ان دونوں لڑکا اور لڑکی کو پولیس وین کی طرف لے جانے لگا تو اس لڑکے نے آگے بڑھ کے زاہد سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر آپ نے ہمیں پولیس اسٹیشن لے کر جانے ہی ہے تو چلے، میں آپ کو اپنی گاڑی میں لے چلتا ہوں۔ زاہد نے گاڑی کی طرف دیکھا تو وہ ایک نئے ماڈل میں بلیک کلر کی ٹویوٹا کرولا تھی۔ گاڑی کو دیکھ کر زاہد کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ایک مالدار اسامی ہے۔ زاہد نے اپنے ساتھی پولیس والوں کو گرفتار ملزم تھانے لے جانے کو کہا اور خود اس لڑکے کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھا، جبکہ لڑکی خاموشی سے آ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زاہد نے لڑکے کو پولیس چوکی جہلم جانے کو کہا تو اس لڑکے نے گاڑی کو دینا سٹی سے نکال کر جہلم کی طرف موڑ دیا۔ دینا سے جہلم کے پورے راستے وہ لڑکا اپنی طرف سے اس بات کی پوری کوشش کرتا رہا کہ زاہد ان دونوں کو میاں بیوی تسلیم کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ زاہد کی منت سماجت کرتا رہا کہ وہ پیسے لے کر ان دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی بجائے راستے میں ہی چھوڑ دے۔ زاہد نے اپنے دل میں پکا پلان پہلے ہی بنایا ہوا تھا کہ وہ ان دونوں کو رشوت لے کر چھوڑ تو ضرور دے گا، مگر ان کو چھوڑنے سے پہلے وہ ایک بار اس لڑکی کا دروازہ ضرور پینٹ کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی ابھی پولیس چوکی سے تھوڑی دور ہی تھی کہ زاہد نے لڑکے کو گاڑی ایک سڑک پر موڑنے کو کہا اور پھر اسی سڑک کے کنارے پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان کے باہر زاہد نے گاڑی کو رکوا دیا۔ جب سے زاہد چوکی انچارج بنا تھا تب سے اس نے یہ مقام کرائے پر لے رکھا تھا، کیونکہ وہ اس مکان میں ان ملزموں کو بند کرتا تھا جن کی گرفتاری اس نے ابھی پولیس رپورٹ میں نہیں ڈالنی ہوتی۔ وہ لوگوں کے ساتھ رشوت کی لین دین بھی ادھر کرتا اور کبھی کبھی کسی کو یہاں بلا کر دروازہ بھی پینٹ کرتا۔ جب گاڑی مکان کے باہر رکی تو لڑکے نے حیرت سے زاہد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ پولیس اسٹیشن تو نہیں؟ زاہد: ہاں، تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو پولیس اسٹیشن نہ لے کر جاؤ، تو میں تم کو ادھر لے آیا کہ ادھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ چلو اب اندر چلو۔ زاہد نے دروازے کا تالا کھولا اور وہ دونوں اس کے ساتھ مکان کے اندر چلے آئے۔ وہ مکان ایک کچن، باتھ روم اور ایک بیڈ روم پر مشتمل تھا۔ وہ تینوں مکان کے صحن سے گزر کر بیڈ روم میں چل آئے۔ اس کمرے کے ایک طرف ایک صوفہ پڑا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک بڑے سائز کا پلنگ بچھا ہوا تھا، جبکہ کمرے کی تیسری دیوار کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹی وی پڑا ہوا تھا۔ زاہد نے دونوں کو صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے پلنگ پر جا بیٹھا۔ لڑکی کو شاید کمرے میں گرمی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے صوفے پر بیٹھتے ساتھ ہی اپنے منہ سے برقعے کا نقاب اٹھا دیا، جس سے اس کا چہرہ زاہد کے سامنے آ گیا۔ زاہد نے پلنگ پر بیٹھ کر دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں اپنی نظریں جھکائے بالکل خاموشی سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ زاہد لڑکی کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر لڑکے کی قسمت پر رشک کرنے لگا کہ بڑا قسمت والا ہے۔
साथ ही साथ इन दोनों को इस तरह मजबूर अपने सामने बैठा देखकर एक पुलिस वाला होने के बावजूद जाहिद को इन पर तरस आया और इसने पहली बार बड़े मुहज्जब लहजे में इनसे पूछा, तुम दोनों के नाम क्या है और सच सच बता कहाँ से और कितने का लाए हो ये माल। लड़के ने जब जाहिद को इस तरह अपने साथ मुहज्जब लहजे में बात करते देखा तो शायद इसने भी थोड़ा सुकून की सांस ली और इसने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरा नाम जमशेद है और मेरी बीवी का नाम नीलोफर है। यार तुम क्यों बार बार इस बात पर इसरार कर रहे हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो? अच्छा अगर वाकई ही तुम मियाँ बीवी हो तो दिखाओ मुझे अपना निकाहनामा। जाहिद ने जमशेद से पुलिस वालों का रिवायती सवाल पूछा। बाहर पुलिस वाले जब भी किसी लड़की और लड़के को आवारा फिरते पकड़ लेते हैं तो इनका हमेशा यही मुतालबा होता है कि दिखाओ निकाहनामा। हालांकि सब लोग जानते हैं कि शादीशुदा जोड़ा कभी अपना निकाहनामा साथ लेकर नहीं घूमता। जमशेद, सर आपको पता है कि हमारे पास इस वक्त निकाहनामा नहीं है। जाहिद, तो फिर ये कैसे साबित होगा कि तुम लोग मियाँ बीवी हो? अच्छा आप बताएं कि आपको कैसे मुतमईन किया जा सकता है। जमशेद ने इनडायरेक्टली जाहिद से पूछा कि वो कितने पैसे लेकर इनकी जान बख्शी करेगा। ऐसे जाहिद जमशेद की बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराया क्योंकि वो अब जान गया कि जमशेद अब सही लाइन पर आ गया है और अब इसके लिए इसे रिश्वत का मुतालबा किया जा सकता है। वैसे तो तुम लोग जानते हो कि ये केस क्या और इसकी तुमको कितनी सजा मिल सकती है और इसलिए मुझे तुम लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर ना करने का 50,000 रुपये चाहिए। जाहिद ने जानबूझकर पैसे थोड़े ज्यादा बताए। इसका इरादा था कि 10 से 15,000 और नीलोफर की लेकर वो इनको जाने देगा। जमशेद, सर ये तो बहुत ज्यादा रकम है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं भी मीडिया वालों को खबर कर देता हूँ कि हमने छापा मारकर एक जोड़े को रंगे हाथों पकड़ा है और फिर थाने ले जाकर तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर कर लेता हूँ। जाहिद ने कहते हुए अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। प्लीज ऐसा ना करें, मीडिया पर खबर आने से ना सिर्फ मेरा घर उजड़ जाएगा बल्कि मेरी और भाई की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जब नीलोफर ने जाहिद को फोन मिलाते देखा तो वो एकदम अपनी जगह से उठी और जाहिद के कदमों में गिरकर इसके पांव पकड़ लिए। क्या तुम दोनों बहन भाई हो? नीलोफर की बात सुनकर जाहिद का मुंह हैरत और गुस्से से खुले का खुला रह गया और इसके फोन इसके हाथ से फिसल कर फर्श पर जा गिरा और गिरते ही टूट गया। नीलोफर को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर अब क्या हो सकता था क्योंकि तीर तो कमान से निकल चुका था। कमरे में बिल्कुल एक सन्नाटा सा छा गया। जाहिद गुस्से की हालत में कभी जमशेद को देखता और कभी अपने कदमों में बैठी नीलोफर पर अपनी नजरें जमा लेता, जबकि जमशेद और नीलोफर दोनों गुमसुम एक बुत की तरह बेजान होकर बहते हुए थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि बोले भी तो क्या बोले। थोड़ी देर बाद जाहिद ने थोड़ा चौंक कर नीलोफर को इसके कंधों से पकड़कर उठी और इसको अपने साथ पलंग पर बैठा लिया। यूं खुद अपने मुंह से ही अपना इतना बड़ा राज अफशा हो जाने पर नीलोफर पर एक कपकपी सी तारी हो गई थी और घबराहट के मारे इसका बदन कांपने लगा था। जाहिद के साथ वो एक पलंग पर बैठ तो गई मगर शर्म के मारे वो पसीने पसीने होने लगी थी। दूसरी तरफ जाहिद अपनी ही सोचों में गुम था। इसने अपनी आप तक की पुलिस सर्विस में
काफी केस देखे और सुने थे, मगर एक बहन भाई का ये पहला केस था जिसके सामने आया था। इस बारे में सोचते हुए जाहिद की आंखों के सामने वो मंजर दौड़ने लगा जब इसने होटल के कमरे का दरवाजा खोलकर अपनी आंखों के सामने एक बहन को अपने भाई से दरवाजा पेंट करवाते देखा था। ये मंजर याद आते ही जाहिद के बदन में एक अजीब सी मस्ती चलने लगी। जाहिद ने इससे पहले भी कई दफा लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था, मगर अब ये पता चलने के बाद कि आज जिस लड़का लड़की को इसने पकड़ा है वो एक आम कपल नहीं बल्कि सगे बहन भाई हैं, तो ये बात जानते हुए भी कि बहन भाई का इस तरह आपस में ताल्लुकात कायम करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। न जाने क्यों जाहिद के दिमाग में कुछ और चल रहा था और गुस्से का जो आलम एक लम्हे पहले इस पर तारी हुआ था अब इसमें भी कमी आने लगी थी। तुम लोगों को पता है ना कि जो कुछ तुम दोनों ने आपस में किया है वो काम गलत है। जाहिद ने जमशेद और नीलोफर की तरफ देखते हुए इनसे सवाल किया। जी हम जानते हैं कि ना सिर्फ ये काम गलत है बल्कि गुनाह भी है, जमशेद ने आहिस्ता से जवाब दिया। तो सब जानते हो तो फिर क्यों और कब से कर रहे हो ये काम? जाहिद ने फिर पूछा। दोनों बहन भाई ने इस बार कोई जवाब न दिया और खामोश सर झुकाए बैठे रहे। जवाब दो, मैं तुम लोगों की इस हरकत की वजह जानना चाहता हूँ। जाहिद ने दोबारा थोड़े सख्त लहजे में पूछा। जमशेद और नीलोफर दोनों ने इस बार भी जाहिद के सवाल का जवाब ना दिया और अपना अपना मुंह बंद ही रखा। जाहिद के दिल में तजस्सुस था कि वो ये जान सके कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी खातिर दोनों बहन भाई ये करने पर मजबूर हुए थे। इसलिए जब इसने देखा कि वो इसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे तो इसने इनको एक ऑफर देने का सोचा। जाहिद, अच्छा अगर तुम लोग मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों से बहुत ही मामूली से रिश्वत लेकर तुम दोनों को जाने दूंगा। जाहिद के ऑफर सुनकर दोनों बहन भाई ने सर उठाकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे हों कि जाहिद को अपनी कहानी सुना दी जाए या नहीं। जमशेद ने थोड़ी देर बाद अपनी बहन की आंखों में देखने के बाद हाँ में अपना सर हिलाया, तो फिर नीलोफर ने आहिस्ता आवाज में अपनी कहानी जाहिद को सुनाना शुरू कर दी। नीलोफर ने बताया कि इनका ताल्लुक जेहलम से ही है। इसकी शादी 2 साल पहले हुई। शादी के वक्त इसकी उम्र 24 साल थी। इसका शोहर मस्कत ओमान में जॉब करता है। शादी के बाद इसका शोहर 1 महीना इसके साथ रहा और फिर अपनी जॉब के सिलसिले में वो वापस मस्कत चला गया। इसका शोहर साल में 1 दफा 1 महीने के लिए पाकिस्तान आता है और छुट्टी गुजार कर फिर वापस चला जाता है, जबकि वो अपने बड़े सास और ससुर के साथ प्रोफेसर कॉलोनी जेहलम में रिहाइश पजीर है। इतना बताकर नीलोफर खामोश हो गई। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा।